as Hector the hermit crab crawled along the sandy shallow of the lagoon. हेक्टर नाम का एक क्रैब था जो कि झील के किनारे बड़े आराम से रेंग रहा था. He noticed a strange shadow from across the small hills and valleys of the sand. अचानक से उसने एक छाया देखी जो कि पहाड़ी के पास से आ रही थी. It got bigger and bigger and bigger. और उसके बाद वो छाया है वो बड़ी लंबी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई. What's a great catch? Larry yelled to the other in the pot. और अचानक से क्या हुआ कि लैरी नाम का वो जो शख्स था वो जोर से चिल्लाया और बोला कि वाह, पकड़ ही लिया. और इस तरह से वो जो हेक्टर केकड़ा था, जो क्रैब था, वो जाल में फंस गया. About 1 week later, Tammy and Jimmy were shopping with their mom at a new plaza that had just opened in their town. एक हफ्ते बाद टैमी और जिमी नाम के दो बच्चे होते हैं जो अपनी मम्मी के साथ एक नए शॉपिंग मॉल में जाते हैं जो अभी लेटेस्ट ही उनके शहर में खुला था. It was a nice plaza and built just across the street from a small beach, a lagoon and the big blue beautiful ocean. वो बड़ा ही सुंदर सा एक शॉपिंग मॉल था जो बिल्कुल उनके घर के पास एक सुंदर सा जो बीच था उसके पास खुला था. They like to shop with their mom. वो हमेशा से अपनी मदर के साथ शॉपिंग करना पसंद करते थे. But today was different. लेकिन आज तो कुछ अलग ही होने वाला था. All of the stores were new and their mom was shopping for a special gift. सारे के सारे जो स्टोर्स थे उस मॉल में सारे नए थे और उसकी मदर आज कुछ नया ही खरीदना चाहती थी. And had told them that they couldn't buy anything. और उसने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि आज तुम लोगों को कुछ भी नहीं खरीदना. Actually, their mom said I was thinking of the new pet shop. उसके मदर ने कहा कि एक्चुअली मैं एक पेट शॉप के बारे में सोच रही हूँ. It's supposed to be the best in the area. मैंने सुना है कि वो इस एरिया की सबसे बेस्ट पेट शॉप है. It has a giant aquarium with all kinds of fish. और उस पेट शॉप में एक बहुत बड़ा मछली घर है जिसमें हर प्रकार की मछलियाँ हैं. Even a shark, और यहाँ तक कि शार्क भी है. There are birds, dogs, cats, lizards and more. वहाँ पर सारे पक्षी हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, लिजार्ड्स हैं and many more animal. It's almost like a zoo. वो एकदम जू जैसा लगता है. I thought you two could spend some time there while I got that special gift. मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक मैं वो स्पेशल गिफ्ट लेके वापस नहीं लौटूँ तुम दोनों वहीं पे रुको. To hear this, Tammy and Jamie were now excited and couldn't wait to get to the pet shop. अब टैमी एंड जेमी ये सुनकर खूब एक्साइटेड हो गए और अब उनसे वेट ही नहीं हो रहा था उस पेट शॉप में रुकने के लिए. As they went around the next corner, there it was. और जैसे ही वो उस मॉल में थोड़ा और आगे चलते हैं तो उन्हें वो दिखता है. A huge door with a giant sign. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पे लिखा था The Amazing Animal Emporium. As they walked through the door, they couldn't believe their eyes. और जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे में प्रवेश किया उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ. The right in the middle of the store was an aquarium that was bigger than any swimming pool. और वो जो एक्वेरियम था वो इतना बड़ा था कि एक स्विमिंग पूल से भी ज़्यादा बड़ा था. They walked around the peered into the water. वो चारों तरफ उस स्विमिंग पूल के घूमने लगे and peered into the water और वाटर में झांकने लगे. And saw all sorts of creature. Look at all the clownfish. Tammy said. Tammy ने कहा देखो उस clownfish को देखो. Look at that shark. तो जिमी ने कहा अरे इस शार्क को देखो. As they looked at all the small and sometimes unusual animals, squealed Tammy, "Look at this!" और जैसे ही वो उन unusual animals को देख रहे थे तो अचानक से टैमी बोला "Look at this!" अरे इसको देखो. A hermit crab. Cool, replied Jimmy. तो जिमी ने कहा अरे ये तो एक एकांतवासी केकड़ा है. That is the hermit crab. It's very cool. Although the crab didn't do much, हालांकि जो क्रैब होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं करते. They watched with fascination as it crawled over the sand and rocks. पर उन्हें मिट्टी पर चलते हुए रेंगते हुए देखना बड़ा आनंद देता है. Once in a while it would start to come out of its shell and then quickly pop back in and cover its face with its giant claw. वो एक बार के लिए पानी से बाहर निकलते हैं, मिट्टी पे रेंगते हैं, उसके बाद अपने बड़े बड़े पंजों से अपना मुंह ढक लेते हैं. He is looking for a new and bigger shell for his home, said their mom. I am glad I was able to find you too. This place is big. इतने में इनकी मम्मी आ जाती है और वो उनको कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग यहीं पर हो.
टैमी लुक्ड एट द क्रैब एंड सेड, टैमी ने उस क्रैब की तरफ देखा और कहा बाय हेक्टर, और उसने उसको एक नाम दे दिया हेक्टर। वी विल मिस यू, हम तुम्हें मिस करेंगे। जिमी वेव टू हिम, जिमी ने भी उसकी तरफ हाथ हिलाया। टर्न टू वॉक अवे, एज द थ्री वर लिविंग दे हर्ड ए टैपिंग ऑन द ग्लास, और जैसे ही वो तीनों टर्न हो रहे थे तो उन्होंने एक ग्लास पर खटखटाने की आवाज़ सुनी। आई डोंट बिलीव दिस, सेड देयर मदर, तो उनकी मदर ने कहा अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, दैट क्रैब इज सेइंग गुड बाय टू यू, ये क्रैब है वो तुमसे गुड बाय कह रहा है। आई गेस वी विल जस्ट हैव टू बाय हिम एंड हैव ए न्यू पेट, मुझे लगता है कि मुझे इसे खरीद लेना चाहिए और ये तुम्हारा नया पेट होगा। Now the fun began. अब तो बस मज़े ही आने वाले थे। They had the salesperson get Hector, already named him, and put him into a box. और वो एक सेल पर्सन के पास गए और उनसे एक बॉक्स मांगा। Then they bought him a new case. उसके बाद उन्होंने उसके लिए एक पिंजरा लिया। Herbert craft padding, several cells, swimming pool, water dish, special food, some rocks, and everything Hector needed to be at home in their home. जो भी आवश्यक चीज़ें थी हेक्टर की वो सब उन्होंने खरीद ली और उसे घर ले आए। टैमी एंड जिमी टुक एक्सीलेंट केयर ऑफ हेक्टर, अब टैमी और जिमी ने उस हेक्टर की खूब केयर की। एंड देयर मॉम वाज हैप्पी टू सी दैट दे वर सो रेस्पॉन्सिबल विद देयर लिटिल फ्रेंड, और उसकी मॉम भी बहुत खुश थी उन्हें ऐसे देखकर कि वो उस अपने छोटे से फ्रेंड के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। बट एज टाइम पास, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हेक्टर सीम टू बी लेस एंड लेस हैप्पी, तो हेक्टर था वो दिन प्रतिदिन कम खुश हो गया, मतलब वो दुखी सा रहने लग गया। आफ्टर ऑल, नो मैटर हाउ नाइस हिज ह्यूमन फ्रेंड्स वर, ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड ऑफ हिज ओवन काइंड। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ह्यूमन काइंड्स कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो बात है ना कि जो इंसान जिसके साथ रहता है उसे वो ही पसंद आता है। ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स ऑफ हिज ओवन काइंड, उसके पास अपने कोई फ्रेंड नहीं थे। हेक्टर मिस्ड हिज फैमिली, सो हेक्टर ने अपनी फैमिली को मिस करना शुरू कर दिया। द ओपन स्पेस ऑफ द लैगून दैट ही वॉज एक्यूज टू, और वो जो खुला मैदान था लैगून का उसे भी वो मिस कर रहा था। One morning, Jimmy and Tammy decided that although Hector was a good pet, he deserved things they couldn't give him. एक दिन सुबह जिमी और टैमी ने डिसाइड किया कि हालांकि जो हेक्टर था वो बहुत अच्छा पेट था, लेकिन वो कुछ और ही डिजर्व करता था। मॉम, टैमी आस्क्ड फ्रॉम अक्रॉस द रूम, टैमी ने अपनी मदर को आवाज़ लगाई, कैन वी लेट हेक्टर गो, क्या हम हेक्टर को जाने दे सकते हैं? डोंट यू लाइक हिम एनी मोर, सी इंक्वायर्ड, तो उसकी मदर ने पूछा कि क्या तुम हेक्टर को पसंद नहीं करते? ऑफ कोर्स वी डू, सेड जिमी, बट ही इज़ नॉट हैप्पी हियर, अरे हम उसे बहुत पसंद करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर खुश नहीं है। सिटिंग हिम फ्री वुड बी द बेस्ट फॉर हिम, और हमें लगता है कि उसे फ्री कर देना चाहिए। देयर मॉम थॉट, उनकी मदर ने सोचा, टैमी एंड जिमी आर वेरी अनसेल्फिश एंड वेरी स्मार्ट एंड गुड बॉय, उसकी मदर ने सोचा कि देखो टैमी और जिमी कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने अच्छे लड़के हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, और उनकी माँ को उन पर गर्व हुआ। Later that day, their mom took Tammy, Xavier, Hector and all of Hector's things to the lagoon across from the plaza. उसी दिन दोपहर को उसकी मदर टैमी, जिमी और हेक्टर के साथ उसी लैगून के पास गई। टैमी carefully took Hector from his cage and placed him in the sand next to the shallow. और टैमी ने उसे धीरे से पिंजरे से निकाला और उसे उसी मिट्टी में छोड़ दिया। As they left with the एम्पेटी केस, और जब वो वापस उसी खाली पिंजरे के साथ लौट रहे थे, दे थॉट दे हर्ड ए फैन टैपिंग ऑन ए रॉक, तो उन्हें कुछ चट्टान पर आवाज़ सुनी। दे टर्न टू सी हेक्टर एंड सेवरल अदर हर्मिट क्रैब्स स्लोली क्राइंग इनटू द शैलो, और उन्होंने देखा कि एक साथ खूब सारे क्रैब्स वो रेंग रहे थे ज़मीन पर उस मिट्टी में, और इस तरह ये दोनों जो बच्चे थे वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है, ए ट्रू एक्ट ऑफ लव इज़ इंश्योरिंग दैट एवरीवन इज़ हैप्पी। सच में सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें सब इंसान खुश हो।